Good morning, dear students. Welcome to your English online class. We are in chapter Albert Einstein School. We were seeing how the student life of Albert was, and also he was very much irritated because of his school and of his lodgings. He met a doctor with the help of Yuri to get a medical certificate certifying that he is nervously down and he needs to be away from school for a little while. So let's see what happens later. I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. So मैं mathematics teacher से कुछ लेगा the certificate, एक और certificate, sharing that he is good in mathematics so that he can pursue higher studies in another school. It is mentioned it clear that he was a brilliant student in mathematics. I have learned all the maths they teach at school. Mathematics में जितना भी चीजें वो स्कूल में सिखाया गया सब कुछ मैंने सीख लिया और उससे भी बिट मोर थोड़ा ज्यादा भी. पर आपको ऑलरेडी मालूम है इनको हिस्ट्री में जो डेट्स और इवेंट्स वगैरह है उसको याद करना वो वगैरह उसको पसंद नहीं है. He added when Dr. Weil looked doubtful. Well, it's up to you, Albert, Ernest Weil told. I doubt it if it will come off. पता नहीं ये सक्सेस होगा कि नहीं. But I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. But पता नहीं तुम्हारा प्लान वर्कआउट होगा कि नहीं. बट एक थिंग तो श्योर है, इधर रहकर इस स्कूल में रहकर ना तुम तुम्हारे लिए ना किसी के लिए भी कुछ फायदा हो रहा है. How long would you like me to say you should stay away from school? तो अगर है इस तरह का सर्टिफिकेट तुम्हें दे दूं तो कितने दिन के लिए चाहिए तुम्हें? Will it be for 6 months is enough? Would 6 months be all right? This is very kind of you, sir. I'm very kind. This is very kind of you. Albert told thankfully. It's nothing. I have only just started being a student myself. मैं खुद ही एक स्टूडेंट था अभी तक और मैं स्टूडेंट लाइफ पास करके एक डॉक्टर बनाऊं तो मैं तुम्हारा पूरा बात ही समझ सकता हूँ. So I know about how you feel. तुम्हारे फीलिंग्स, तुम स्कूल को पसंद नहीं करते, किस तरह स्टडीज को लेके जाएंगे सब मुझे अच्छी तरह मालूम है. Here you are. और उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया कि डॉक्टर वेल हैंडेड इन द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक. तो 6 महीने के स्कूल से दूर रखने का सर्टिफिकेट दिया उन्होंने. तो फीस के रूप में अल्बर्ट ने पूछा हाउ मच? नथिंग इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर. अगर तुम्हारे पास कुछ भी पैसा बचा है तो यूरी को बाहर जाके तो खाना खिलाओ. Invite Yuri to a meal. He is a good friend of mine. वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड है and yours too, I think. Albert had no money to spare, but फिर भी उन्होंने यूरी को बाहर लेके जाके खाना खिलाया. But he pretended he had and took Yuri out to supper. So डॉक्टर और अल्बर्ट का कम्युनिकेशन हो गया. अल्बर्ट डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर ने पूरा बातें पूछ लिया उनसे और उनको फ्यूचर के प्लान से पूछ के अर्नेस्ट वेल ने उनको सर्टिफिकेट दिया. 6 महीने मेंटली डिप्रेस्ड है, मेंटली डाउन है और 6 महीने के स्कूल से दूर रहना उचित है बोलते. So well, that part is enough. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. यूरी को दिखा के बोला क्या ये बहुत शानदार है ना, अच्छा है ना. Yes, it's fine. Yuri agreed. 6 months is a good period. 6 months अच्छा टाइम है. This way you won't actually be leaving the school. तो इस तरह तुम स्कूल से बाहर जाएगा नहीं. अगर तुम्हें मूड आएगा तो वापस स्कूल में आ सकते हैं. So if the worst comes to worst, अगर worst सबसे बुरा उधर भी हो जाए, you will be able to come back. तुम वापस आ सकते हो and carry on your diploma. I'll never go back to that place. तो अल्बर्ट कट एंड शॉर्ट करके surely बोल रहा है, कट एंड स्ट्रेट करके बोल रहा है कि no, I will never go to that school again because he hated that place very much. Albert assured him, I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow. मैं ये head teacher को देने वाला हूँ ये certificate. And that will be the end of the chapter of my time in this school will come to an end along with that. तो मैं ये सर्टिफिकेट हेडमास्टर को देगा और मुझे इस स्कूल से कुछ दिनों के जाने के लिए बोल का परमिशन हो जाएगा. Don't forget to get a reference in writing from a mathematics teacher first. But जाने से पहले मैथमेटिक्स टीचर से एक रेफरेंस लेना भूला मत. तो आपको मालूम है वो रेफरेंस क्या है कि Albert Einstein has studied all the mathematics in school and is very good in school so that he can pursue further studies in mathematics in any college. वो है certificate. Mr. Koch
Yuri reminded him. Mr. Koch, that is a mathematics teacher, willingly gave Albert the reference he wanted. तो Albert को जो reference चाहिए तो उन्होंने willingly मतलब happily दिया, क्योंकि वो उनको मालूम है कि Albert किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं मैथमेटिक्स में. If I say I cannot teach you anymore, अगर मैं इस सर्टिफिकेट मजाक के रूप में उन्होंने बोला, मैं इस सर्टिफिकेट में लिखूं कि मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, and probably शायद you will soon be able to teach me, कि तुम मुझे सिखा सकती हो, will that be all right? He asked. That's saying too much, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना सर. सर एल्बर्ट, इट्स ओनली द ट्रूथ. तो कोच बोल रहे कि वो हकीकत है, तुम मैथ्स में इतना ब्रिलियंट हो कि टीचर्स को भी सिखा सकते हो तुम. बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली. कोई बात नहीं, मैं इस सर्टिफिकेट में थोड़ा सीरियसली देता हूँ. इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, वेरी वर्कफुल, वेरी वैल्यूबल सर्टिफिकेट था वो फिर भी. एंड मिस्टर कॉच मेड द पॉइंट दैट, और उसमें मिस्टर कॉच ने ये लिख कर दिया कि एल्बर्ट वॉज रियली ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. Higher mathematics study करने के लिए हमारा एल्बर्ट इंस्टीट्यूट पक्का एलिजिबल है, रेडी है, उतना मैथ्स उनको आता है. ये सर्टिफिकेट दिया मिस्टर कॉच को. मिस्टर कॉच इज द मैथमेटिक्स टीचर. तो दो टीचर का मेंशन किया उसमें इस चैप्टर में, एक तो मिस्टर कॉच मैथमेटिक्स टीचर और मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री टीचर. दोनों को कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन है हमारे एल्बर्ट के बारे में. मिस्टर बॉन्ड सोचते हैं कि एल्बर्ट वाज एन यूजलेस पर्सन, ए शेमफुल पर्सन हु इज नॉट वर्थ इनफ टू बी ए स्टूडेंट. और मिस्टर कॉच बोल रहा है कि ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इवन ब्रिलियंट, दैट मच ब्रिलियंट है कि इवन टीचर्स को भी वो सिखा सकते हैं. सो यू कैन सी टू डिफरेंट ओपिनियन ऑफ टीचर ऑफ द सेम स्कूल अबाउट द सेम स्टूडेंट. आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माय क्लास. सर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम जा रहे हो, वैसे तो तुम मेरे क्लास में टाइम वेस्ट करते. ये तो मैथ्स टीचर बोल रहा है, बट अल्बर्ट बोल रहा है कि नहीं, ये ओनली वही क्लास है जो मैं इंटरेस्टली बैठता, दैट इज अ मैथमेटिक्स क्लास. इट्स ऑलमोस्ट ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम. मेरा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला एक ही क्लास है, वो ये है. इट्स ऑलमोस्ट ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम, सर एल्बर्ट. बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर? बट आपको कैसे मालूम कि मैं इधर से जा रहा है? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. नहीं तो तुम इस रेफरेंस के लिए पूछेगा नहीं अगर तुम इस स्कूल से जाएगा नहीं. तो इधर से जा रहा है इसलिए इस रेफरेंस के लिए तुमने पूछा है. I thought you'd wonder. तो मुझे लगा कि आप वंडर करोगे, आश्चर्य हो जाएगा कि मैं ये सर्टिफिकेट क्यों ले रहा है. There is nothing to worry about. And still, I know you were going to leave a school before you knew yourself. तुम खुद जाने से पहले मुझे पता था कि तुम स्कूल छोड़ के जा रहा है. ऐसा मिस्टर कॉच ने क्यों बोला, बाद में आइंस्टीन को पता चलता है जब वो हेडमास्टर से मिलते हैं. एल्बर्ट वाज पजल्ड, वाज वेरी सरप्राइज्ड टू हियर फ्रॉम मिस्टर कॉच का ये डायलॉग सुन के कि उनको पहले से मालूम था कि एल्बर्ट जा रहा है. व्हाट इज द टीचर मीन? टीचर का मतलब क्या है? ही सून फाउंड आउट, उनको जल्दी पता लग गया. बिफोर ही हैड चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद हेड टीचर से मुलाकात के लिए परमिशन लेने से पहले उनको बुलावा आया, उनको उधर जाने के लिए बोला हेडमास्टर ने. ही वाज समवन मतलब कॉल्ड टू दी हेड रूम पे बुलाया गया. वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड. तो एक बिजी स्कूल का प्रिंसिपल को कभी मुलाकात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर 1 या 2 घंटा वेट करना पड़ेगा. बट अच्छा हुआ अभी प्रिंसिपल ने या हेड टीचर ने मुझे खुद ही बुलाया है, एटलीस्ट मेरा बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा. ही थॉट. ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर. उन्होंने सोचा नहीं कि क्यों बुलाया गया, बट वैगली थोड़ा सा सपोज अनुमान लगाया कि ये वाज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क. उनको टीचर्स और प्रिंसिपल बुलाते हो तो एक ही काम के लिए बुलाते हैं, पनिशमेंट देने के लिए. उनको लगा हल्का सा कि पनिशमेंट के लिए होगा एंड लेजीनेस के लिए. वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट. तंग आ गया तो उनको पनिशमेंट से. फिनिश मतलब तंग आ गया. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, बट सरप्राइजिंगली हेड टीचर ने बोला आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू टुडे. द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज, योर वर्क इज टेरेबल. तुम्हारा वर्क बहुत खतरनाक है, तुम बहुत ही बेफास काम करते हो. एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. और इसलिए तुम्हें और इस स्कूल में रखना नहीं चाहते. एल्बर्ट Einstein, I want you to leave the school now. तुम इस स्कूल छोड़कर अभी जाना है. So that's the reason why our head teacher summoned Albert. Leave school now? Repeat Albert, dazed. अच्छा आश्चर्य होके. That is what I said. You mean, Sir Albert,
that I am to be expelled, क्या तुम्हें मुझे स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर रहे हो या निकाल रहे हो? You can take it that way of you wish, Einstein. अगर तुम उस तरह सोच रहे हो तो हाँ सही है, तुम जैसे सोच रहे हो वैसे ले लो. The head teacher was not mincing words. Mincing word मतलब word शॉर्ट नहीं कर रहा था, खुले बोल रहा था, बातों को छुपा नहीं रहे थे. Mincing मतलब कट करना. He was not cutting words. The simplest thing will be, सबसे अच्छा ये होगा कि for you to go of your own accord, तुम अपने आप चले जाओ. And then the question won't arise, तो कोई पूछेगा नहीं कि क्यों तुम्हें बाहर किया है वगैरह. तो सबसे अच्छी बात है तुम खुद ही इधर से निकाल के चले जाओ. बट सर अल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, अभी मेरा मिस्टेक क्या है? तो उन्होंने बोला तो हेडमास्टर को क्यों निकाल, उसका रीजन ये है, योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच. तो टीचर को क्लासरूम में पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं. एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न, और बाकी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रहा है. दिस इज अ कंप्लेंट गिवन बाय द हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन. यू रिफ्यूज टू लर्न, आप पढ़ते नहीं हो. एंड ऑल्सो यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन, सबके साथ तुम आर्ग्यू करते हो. कॉन्स्टेंट रेबेलियन मतलब जो भी पूछे उसके लिए आप तुम आर्ग्यू करते हो टीचर से. एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, आप स्कूल क्लासरूम में तुम हो तो किसी भी तरह का सीरियस वर्क करना इम्पॉसिबल है. दैट्स व्हाट इज द प्रॉब्लम, द रीजन फॉर एक्सपेलिंग अल्बर्ट फ्रॉम स्कूल. अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन इट्स पॉकेट. उसका जो सर्टिफिकेट उन्होंने जेब में रखा, जो आनंद पहले लगा, वो जल्दी यूज करने का इच्छा हो रहा था उसको अपने जेब से. इतना जल्दी हो गए वो बर्न कर रहा जल रहा, मतलब he was eager to use it at once. Here और हेडमास्टर मैं ये यूज कर रहा बोल के, मैं ही खुद ही जा रहा बोल के निकालने का इच्छा हो रहा था उनको. I was going to leave anyway, मैं वैसे भी जाने वाला था, ऐसे बोला अल्बर्ट. तो our headmaster became very happy. Then we are in agreement at least. अब और आइंस्टीन, कम से कम इसमें तो हमारे दोनों का एग्रीमेंट है. आइंस्टीन the headmaster said. For a moment Albert was tempted to tell the man what he thought of him. तो एकदम से उनको विचार आया कि हेडमास्टर को बताने के लिए कि वो उस स्कूल के बारे में और उस हेडमास्टर के बारे में उसका विचार क्या है. He thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word, holding his head high. He stopped. और अपना सिर ऊंचा रखे वो उस कमरे से बड़े बड़े फुटस्टेप के साथ चला गया. Stopped मतलब moved out. Shut the door after you. तुम अपना दरवाजा, डोर का दरवाजा बंद करो, ऐसा बोला उन्होंने अल्बर्ट से. बट अल्बर्ट ने ध्यान नहीं दिया. Shouted the head. Albert ignored him. उनको नजरअंदाज कर लिया, इसे सुना है नहीं है, ऐसा करके चला गया. He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years. 5 साल तक जहाँ स्पेंड किया था उधर छोड़ के चला गया वो. Without turning his head to give it a last look. पीछे मुड़कर एक बार देखने की इच्छा भी नहीं हुआ उनको. School. He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. और उस जगह पे किसी से भी गुड बाय बोलने का इच्छा भी नहीं था. Indeed, Yuri was almost the only person to say in Munich. He felt like seeing before he left the town. He had come to hate almost as much as his school. तो स्कूल का उसी तरह वो हेट कर रहे थे म्यूनिक, और उधर किसी से भी वो गुड बाय बोलने की इच्छा नहीं था. ओनली एक पर्सन से बोलने की इच्छा था, वो है यूरी. Elsa was back in Berlin and he had no other real friends. Elsa बर्लिन में गए थे और उधर उनका किसी भी तरह का फ्रेंड्स नहीं थे. गुड बाय एंड गुड लक. तो लास्ट मुलाकात में यूरी ने बोला गुड बाय एंड गुड लक. यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री. तुम एक अच्छा कंट्री में जा रहे हो, इटली. आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पी देयर. मुझे लग रहा है तुम उधर हैप्पी होगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स एंड ऑफ ए स्मॉल चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल. The Albert Einstein, whom you know as a great physicist and a scientist, you will be surprised to know what sort of person he was. Very simple, honest person, but his viewpoint of education was totally different. Hope you might have understood the chapter. And let me give you a few questions, important questions of the chapter. First question, take it down. Write it in 2 days' time. You can take 2 days to write the question answers and submit. I think it's not facts that matters, but ideas. I think it's not facts that matters, but ideas. चैप्टर के शुरुआत का लाइन है, Who said to whom and why? कौन किससे क्यों बोला? I think it's not facts that matters, but ideas. Who said to whom and why? Second question. What reason
आज का अभी 2-3 पैराग्राफ पहले मिलेंगे उसके आंसर। व्हाट रीजन डिड द हेड टीचर गिव फॉर एक्सपेलिंग एल्बर्ट फ्रॉम स्कूल? एल्बर्ट को स्कूल से निकालने के लिए क्या रीजन बताया हेड टीचर ने? व्हाट रीजन डिड द हेड टीचर गिव फॉर एक्सपेलिंग एल्बर्ट फ्रॉम स्कूल? So hope your 2 questions are clear. Now for the third question, who was Mr. Koch? आपको मालूम है आज पढ़ाया हुआ मैथमेटिक्स टीचर। Who was Mr. Koch? What did he think about Albert? What did he think about? मतलब वो सर्टिफिकेट में क्या लिखकर दिया वो बोल सकते हैं आपको कि वो कैसे था उनके सब्जेक्ट में। Who was Mr. Koch? What did he think about Albert? Fourth question. Albert felt distressed, unhappy. Albert felt distressed even in his lodging, even in his lodging. जहाँ वो रहते थे उधर उस रहने की जगह पर उनको हैप्पी नहीं था उधर रहने में। Why? Albert felt distressed even in his lodging. Why? Next question. Who was Elsa? Who was Elsa? What advice did she give to Albert? Who was Elsa? What advice did she give to Albert regarding studies she gave? You can sum it up in 2-3 lines and write. Next question. As per the chapter, what are the 2 things Sir Albert was interested in? सब कुछ नेगेटिव है बट 2 things थे जो वो पसंद करते थे, उसका हॉबी जैसा। What are the 2 things Albert was interested in? And the last question for the day. Who was Ernst Whale? Ernst Whale. Who was Ernst Whale? How did he help Albert? How did he help Albert? These are the questions for the day. Try to write in your own way. And if you are finding any difficulty in any answer, just ask me through the group or through personally. I'll be giving you or I'll be helping you with your answers. Hope the chapter is clear for you. Any doubts, please ask. Thank you. Have a wonderful day.